that Israel sold advanced surveillance equipment to Bangladesh. And the equipment is used to intercept mobile and internet traffic, meaning it can monitor the mobile phones of hundreds of people simultaneously. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिटफाट होंगे। व्यूअर्स, बांग्लादेश के ऊपर जो इंडियन मीडिया है वो बड़ा गुस्से में नज़र आ रहा है। इंडियन मीडिया क्या कह रहा है उसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है, ये रखेंगे आपके सामने, फिर इसके ऊपर बात करेंगे किस तरह से वो शोर मचा रहा है कि जो बांग्लादेश है ये हिपोक्रेट से काम लेता है, ये ठीक नहीं करता, ये अच्छा नहीं करता और ये इतने ज़्यादा फ़ायदे लेता है, लेकिन ऑफिशियली ये एक्सेप्ट भी नहीं करता इसराइल को, और इसराइल के साथ जनाब ये इनडायरेक्टली इतनी ज़्यादा ट्रेड भी कर लेता है और अपनी फार्मास्यूटिकल इतनी ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है इसराइल को, ये ठीक नहीं कर रहा। लेकिन इसके साथ साथ वो ये भी कह रहा है कि इतने ज्यादा वेपन्स इक्विपमेंट्स ले रहा है, इसराइल से इंपोर्ट कर रहा है, कौन? बांग्लादेश। लेकिन ऑफिशियली तौर पर वो उसको मानता नहीं है, रिकॉग्नाइज नहीं करता, और साथ ही साथ ये भी कह रहा है कि फलस्तीन के हक में बात करता है बांग्लादेश। इंडियन मीडिया ये भी कह रहा है कि आप देखिए यूनाइटेड नेशन में अगर आवाज बुलंद करता है, उसके हक में बात करता है, फलस्तीन के हक में बात करता है बांग्लादेश, लेकिन दूसरी तरफ वो ट्रेड भी करता है, वो फार्मास्यूटिकल की एक्सपोर्ट भी करता है। 300 मिलियन डॉलर की छोटी अमाउंट नहीं है, बड़ी अमाउंट है। और साथ साथ वो वेपन्स भेज रहे हैं इसराइल बांग्लादेश को, मॉडर्न वेपन्स बांग्लादेश इनडायरेक्टली इंपोर्ट कर रहा है। इसके ऊपर आग बगोला क्यों है? इंडियन मीडिया इसके ऊपर क्यों इतना शोर मचा रहा है, गुस्से में क्यों है? इसकी वजह मैं आपको एंड में, अंत में बताऊंगा व्यूअर्स। इसकी जो मेन वजह है ना वो मैंने आखिर में आपको बताना है। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आपने एंड तक जरूर देखना है। और वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दे। वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें जरूर आगाह भी किया करें। बढ़ते हैं जी वीडियो की तरफ। 3, 2, 1 एंड क्यू। Israel and Bangladesh. The ties between the two countries remain sour. Bangladesh does not recognize Israel as a state, nor do they have any diplomatic ties. And yet, they were involved in controversial trade. Official government documents and international export records showing that Israel sold advanced surveillance equipment to Bangladesh. And the equipment is used to intercept mobile and internet traffic, meaning it can monitor the mobile phones of hundreds of people simultaneously. It was sold to the National Telecommunication Monitoring Center by Israel. Note that the MTMC is an arm of the Bangladeshi Interior Ministry. It is Bangladeshi government's largest legal interception system. It is known for tracking internet and social media use in the country. It is responsible for online censorship and eavesdropping on the citizens. Bangladesh does not recognize Israel as a state, and it cites Israel's occupation of Palestinian lands for that. It prohibits business with any Israeli entities, and in return, Israeli companies are also formally banned from trading with Bangladesh. But despite that, the South Asian country purchased Israeli spy technology not once or twice, but 4 times between 2019 and 2022. The spyware was worth over $12 million. And that's not even all. Bangladesh Military Intelligence and Paramilitary Force Rapid Action Battalion also made such purchases. This was in 2019 and 2021. They bought mobile phone interception and hacking tools from 2 Israeli companies. According to reports, the largest purchase was of a spy van, which was worth $5.7 million. The van can gather data from mobile phones. It can steal Facebook and WhatsApp chats, contact lists, calls, text messages within a radius of about half a kilometer. व्यूअर्स, आपने ये वीडियो देखी है किस तरह से इंडियन मीडिया इसके ऊपर ववेला शोर मचा रहा है और गुस्से में है। मैं आपको बताता हूँ। देखें, जो इंडियन अपने एजेंट भेजता है बांग्लादेश में, म्यांमार में, और म्यांमार के भी रोहिंग्या के जो कॉक्स बाजार को एक अलग रियासत, स्टेट, मुल्क बनाने के चक्कर में है, उसको पकड़ने के लिए बांग्लादेश आए रोज कोई ना कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी बेस्ड
ट्रैकिंग सिस्टम भी ले रहा है इजराइल से, और जिससे इन लोगों को पकड़ लेता है बड़ी आसानी के साथ। देखें, ट्रेड हो रही है, इसमें क्या है, बांग्लादेश अपनी एक्सपोर्ट कर रहा है फार्मास्यूटिकल में बहुत ज़्यादा, इजराइल को भेज रहा है, भारत के ज़रिए होती हुई जाती हैं और देश से होती हुई जा रही हैं, और बांग्लादेश भी इंपोर्ट कर रहा है। लेकिन इनको मसला ये है, इंडियंस को इशू यहाँ पर आ रहा है कि हमारे जो एजेंट्स हैं जो बांग्लादेश में हैं, कॉक्स बाज़ार में है, रोहिंग्या रेफ्यूजीज़ में हैं, इनको ये इशू है, ये प्रॉब्लम है कि वो ख़त्म हो जाएंगे, उनका निश्त हो जाएगा, उनका खात्मा हो जाएगा, उनको तबाह बर्बाद कर देगी बांग्लादेश की आर्मी। लेकिन बांग्लादेश तो शुरू से ही अगर देखें, हिस्ट्री उठाकर देखें, तो वो फ़लस्तीन के हक में बात करता है, वो फ़लस्तीन के लिए बात करता है, चाहे यूनाइटेड नेशन का प्लेटफॉर्म हो या दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा प्लेटफॉर्म हो, उसके ऊपर जनाब बांग्लादेश ने हमेशा उनके हक में, फ़लस्तीनियों के हक में, बहन भाइयों के हक में आवाज़ बुलंद की है। लेकिन इसराइल के साथ रह गई बात ट्रेड की, एक्सपोर्ट्स इम्पोर्ट की, वो एक अलग बात है। देखें, अगर इजराइल नहीं चाहता तो ना ले, लेकिन उनको पसंद है, वो लाइक करता है बांग्लादेश की प्रोडक्ट्स को, स्पेशली फार्मास्यूटिकल को। $300 बिलियन की एक्सपोर्ट कर रहा है बांग्लादेश फार्मास्यूटिकल में, और इंपोर्ट भी कर रहा है बांग्लादेश वेपन्स, उसके बदले में बांग्लादेश वेपन्स परचेज कर रहा है। अभी आपने देखा इस वीडियो में किस तरह से उन्होंने बताया कि वो ट्रैक कर सकते हैं इस तरह से जदीद मॉडर्न आईटी से रिलेटेड स्पाई वैन के ज़रिए वो जितने भी एजेंट्स हैं, चाहे वो रोहिंग्या के कैंप में हो या फिर म्यांमार से आते हों या फिर इंडिया, आपको पता है प्रॉक्सी वार में इंडिया भी बड़ी शैतानियाँ करता है और हमेशा वो करता भी आया, उनकी एक हिस्ट्री रही है, लेकिन उनके वापस उल्टा गले में पड़ जाती है। अब देखें, म्यांमार ने उनके ऊपर किस तरह से बॉर्डर के ऊपर हमला किया और उन्होंने उनकी एयर स्पेस बंद कर दी, यानी उन्होंने तैयार किया था, उन्होंने इंडियंस ने म्यांमार को खुद से वेपन्स दिए, बड़ा कुछ उनको दिया, लेकिन उल्टा उनको उन्होंने वो काट लिया। अब वो परेशान है, और यही भी एक बड़ी जो मेन रीज़न है व्यूअर्स, ये भी हो सकती है कि जनाब इंडिया को ये भी टेंशन है कि अब जो इजराइल से इतने ज़्यादा ताल्लुकात, देखें ऑफिशियली बांग्लादेश ने एक्सेप्ट नहीं किया हुआ, रिकग्नाइज नहीं है और इजराइल को, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी ज़्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स हो रही है, ये भी चीज़ उनको पसंद नहीं है कि यार आप क्या कर रहे हैं, आप क्यों नहीं एक्सेप्ट करते, करें ना, या फिर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद करें, भाई क्यों करें। बांग्लादेश की अपनी एक पॉलिसी है, वो उसके मुताबिक चलता है। इंडियन को मेरे ख्याल में इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, स्पेशली जो गोदी मीडिया है उसको, क्योंकि ये बांग्लादेश की अपनी मुल्क के लिए जो फ़ायदामंद है वो वही करता है। मेरे ख्याल में ये एक अच्छी चाल है, एक अच्छी स्ट्रेटजी है बांग्लादेश की गवर्नमेंट की, वो किस तरह से इसको लेकर के चल रही है। व्यूअर्स, ये वीडियो, ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, इसके बारे में आपने फीडबैक जरूर देना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी किया करें और कॉमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह भी किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एहसान खान को इजाज़त दीजिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।